Welcome to Satyam classes. I am Shomali Ganguly. So we have done some questions of TGT pattern from the chapter real number. Okay. So today we will discuss few more questions from real number chapter. The first question is, what is pi? What is pi? Pi is a rational number, an integer, an irrational number or a whole number. Pi क्या है? All of we know that pi means the pi value is 22/7. But when we start dividing it, the 22/7, it will be 3.1732 ... Okay, so it is continuing, so non-repeating and non-terminating. So this is an irrational number. So the pi is an irrational number. Okay, next question. The decimal expansion of √2 is. The decimal expansion of √2 is. √2 क्या है? All of we know that √2 means 1.414 and so on. Okay, so this is not a finite decimal. This is not 1.4121 because this is terminating. यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, डॉट डॉट नहीं है. So this is terminating, but the value of √2 is not terminating. So this is non-terminating and non-recurring. This is non-terminating and non-recurring. Okay, so this is non-terminating and non-recurring. C क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह non-terminating लिखा है और recurring लिखा है, but ये recurring नहीं है. ये recurring नहीं है. This is non-terminating and non-recurring. Okay, now move to the next question. Which of the following is an irrational number? कौन यहाँ पे irrational number है? So we have to find that which one is irrational and which one is rational. Okay. So in the first option, √23, we can't find the root of 23. That means वैल्यू तो निकाल सकते हैं, बट ये पॉइंट में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, ये क्या है? 15 का रूट है. ये क्या है? ये तो एक फाइनाइट नंबर है. ये एक फाइनाइट नंबर है बिकॉज यहाँ पे ख़त्म हो गया है डिवाइड. और ये क्या है? ये भी एक रिकरिंग नंबर है. वाई दिस इज रिकरिंग? बिकॉज माथे पे इसका क्या है? बार है, तो ये रिकरिंग है. तो यहाँ पे रिकरिंग तो नहीं होना चाहिए. इरेशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए. सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. √23 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How many digits are there in the repeating block of the digit in the decimal when 17 is divided by 7? So when we are going to divide 17 by 7, what we will get? 7 2s are 14. This is 3. Point देके 30. 7 4s are 28. 2 20. 7 2s are 14. 6 point 60. 7 8s are 50. 6 4, फिर 4 को डिवाइड करो, पॉइंट के लगा 0. 7 5s are 35. देन 5 अगेन 50. so 7 7s are 49. Okay, some problem in the electricity. We are continuing. Wait for one few seconds.
तो आज हम लोग रियल नंबर्स का MCQ कर रहे थे, तो हम कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए। Okay, so we were dividing 17 by 7. Twos are 14. Sorry for the inconvenient. $56. Now it's 4 means 40. Now when we are dividing by 7, 5s are 35. 5 point लगा के 50. 7 7s are 49. This is 1. Then point लगा के 0. 7 1s are 7. 3 30. 7 4s are 28, again 2, then 2 के लिए 2 आएगा, तो 2 के लिए 7 से करेंगे तो 7 2s are 14. सो रिपीट कर रहा है अब, तो कहाँ से कहाँ रिपीट कर रहा है? सो 4 से लेके 1 तक रिपीट हो रहा है, फिर 4 के बाद 2 आया, जैसे यहाँ पे 4 के बाद 2 आया था. ओके, सो हाउ मेनी टर्म्स आर रिपीटेटिंग? सो दिस 1 2 3 4 5 6 digits are repeated. So 6 digits are repeated. Okay, so you have to find by dividing 17 by 7. Okay, next question 5. Which of the following is an irrational number? यहाँ से कौन सा एक irrational number है? Okay, we know that this 4 by 4 root 4 is 2 and root 9 is 3. So this is rational. Okay, now divide 1250 by 8. When we are dividing 2 by 8 by 2 4 and we divide by 2, so 625. Okay, so this is under root 625 upon 4. That is 625 is the 625 is square of 25. तो 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 और 4 का 2. So this is also rational. So this is also rational. Root 8 क्या होगा? 2 into 2 into 2. तो एक 2 बाहर आ जाएगा 2 root 2. So this is irrational. पूरा रूट के बाहर नहीं आया. So this is irrational. Okay. Next. 24 by 6, that is 4. 4 by 4 root is 2. So option C is our correct option. ठीक है, तो रियल नंबर कौन सा है? ऑप्शन C. नेक्स्ट, the product of two irrational number is always rational, always irrational, always an integer, sometimes rational and sometimes irrational. पिछले वीडियो में हम बताए थे कि सम और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर्स का प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, हमेशा इरेशनल ही आएगा ऐसा नहीं है. इरेशनल आ भी सकता है, रैशनल भी आ सकता है. ठीक, तो समटाइम्स द रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल. सो दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन डी. ओके, तो दो इरेशनल नंबर्स का प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करने से क्या आएगा? समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल. Okay, next.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी बताए थे कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर आइदर इरेशनल और रैशनल। ओके, तो द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल, हमेशा तो नहीं है, तो ये गलत। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत। अगर इस प्लस के बदले में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर ही आएगा, ये कहीं नहीं लिखा है। तो इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, हर एक रियल नंबर रैशनल है ना? रियल नंबर के अंदर तो इरेशनल नंबर भी आता है, तो हर एक रियल नंबर इरेशनल है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल, हर एक जो रियल नंबर है वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। हाँ, ये सही बात है। तो विच वन इज़ ट्रू? ऑप्शन डी। सो एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल। Okay, so every real number is either rational or irrational. Move to the next question. The simplest form of 1.6 और 6 के माथे पे क्या है? बार है। तो 1.6 6 के माथे पे क्या है? बार है। ये क्या है? This is called recurring टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ये है रिकरिंग हो रहा है क्योंकि बार बार 6 वापस आ रहा है, क्योंकि 1.6 बार का मतलब है 1.666 डॉट डॉट चलते जा रहा है, तो ये रिकरिंग है बिकॉज 6 बार बार वापस आ रहा है। बट नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, so this is recurring but not terminating। अब 1.6 बार का डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है। एक तो होता है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16.666 हो जाएगा, फिर 16.66 से 1.66 माइनस कर दोगे, ऐसे कर जैसे क्लास 9th का बुक में हम लोग करते थे वैसे भी कर सकते हो। और एक इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है कि डायरेक्ट यहीं से आएगा। सपोज़ कि पॉइंट हट गया है और बार भी हट गया है तो क्या होगा? 16, उसे करेंगे माइनस। किसके माथे पे बार नहीं है? 1 के माथे पे बार नहीं है, तो 1 को कर देंगे माइनस। और कितना के माथे पे बार है? ओनली 6 के माथे पे बार है, ओनली 6 के माथे पे बार है, तो एक डिजिट के पहले माथे पे बार है तो एक डिजिट नीचे 9। ठीक, सो पॉइंट के बाद कितना डिजिट के माथे पे बार है ये देखते हैं। जितना डिजिट के बाद माथे पे बार रहेगा पॉइंट के बाद वो उतना बार 9 लिखेंगे, और जितना डिजिट के माथे पे बार नहीं रहेगा उतना बार 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसके माथे पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, इसलिए ये डायरेक्ट यही हो जाएगा। सो 16 माइनस 1 बाई 9। ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, सो दिस इज़ 5/3। सो ऑप्शन C is our correct option. Okay, option C, that is 5/3 is our correct option. फिर से बता देते हैं कैसे हो रहा है ये। देख लो यहाँ पे क्या है? 1.66 के माथे पे बार, तो कितने के माथे पे बार है? सिर्फ 6 के माथे पे बार है, तो एक बार नीचे 9 आएगा। ठीक, अच्छा, पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा नंबर है क्या जिसके माथे पे बार नहीं है? ऐसा नहीं है, इसलिए नीचे 0 नहीं आया। अब 1 के पॉइंट के पहले था 1, तो इसके माथे पे बार नहीं है तो माइनस हो जाएगा, और पूरा पॉइंट और बार दोनों हट जाएगा तो हो गया 16, तो आ गया 15/9। ओके, तो इसको काट दोगे तो 5/3 आएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The simplest form of 0.54 और 5 और 4 दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 0.54
दोनों के माथे पे बार है। अब देखो दोनों के माथे पे बार है इसलिए माइनस करने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले उसका 0 है तो माइनस कुछ नहीं करना है, तो 54 डायरेक्ट लिख दो। सोचो कि पॉइंट भी हट गया है, बार भी हट गया है, तो 54। और कितना के माथे पे बार है? 2 के माथे पे बार है, तो 2 के माथे पे बार है तो नीचे 99 कट कर दो। 3 30 33 ज़ा, 3 1 3, 4 5 24, 3 8 ज़ा 24, 3 11 ज़ा 3 6 ज़ा, so this is 6/11. Okay, so this is 6/11, option B. Okay, so option B is our correct option. Now move to the next question. तो ये समझ में आया, जितने का माथे पे बार होगा उतना नीचे 9 होगा। यहाँ दोनों के माथे पे बार है तो दोनों के लिए नीचे 2 9 आया है, और 54 के माथे पे बार है तो 54 नीचे आ गया। कोई ऐसा नंबर है नहीं जिसके माथे पे बार नहीं है, इसलिए हम कोई भी नंबर को यहाँ पे माइनस नहीं किए, डायरेक्ट 54 ही आ गया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The simplest form of 0.32 bar. The simplest form of 0.32 bar. तो 0.32 सिर्फ 2 के माथे पे बार है। किसके माथे पे? सिर्फ 2 के ऊपर बार है। तो इसको अगर पॉइंट मन में मानेंगे कि पॉइंट हट गया और माथे का बार भी हट गया, तो क्या बचा? 32। अच्छा, ऐसा कौन सा टर्म है जिसके माथे पे बार नहीं है? वो टर्म है 3, जिसके माथे पे बार नहीं है, तो 3 हो जाएगा माइनस। तो 3 क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि 3 के माथे पे बार नहीं है तो उसको बार नहीं दिया गया है, तो उसको माइनस कर दो, पहले ही निकाल दो। अच्छा, कितने के माथे पे बार है? ओनली 2 के माथे पे बार है, तो 1 के माथे पे बार है इसलिए एक बार 9 आया, और 3 के माथे पे बार नहीं है इसलिए एक बार 0 आया। ठीक, सो 32 - 3 इज़ 29/90. So 29/90, that is option C. So option C is our correct option. Okay, so option C is our correct option. Now move to the next question. The simplest form of 0.123 bar. The simplest form of 0.123 bar. सिर्फ 3 के माथे पे है। ओके, तो 0.123 बार। अच्छा, तो कितने के माथे पे है? ओनली 1 के माथे पे है। चलो, तो 1 2 3 होगा। कितने के माथे पे नहीं है? ओके, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, सो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन नेक्स्ट डे।